Hello, students. Hope you all are staying safe and healthy with your family amidst this coronavirus pandemic. I also hope that you people are following proper guidelines issued by Punjab government like wearing mask while stepping out, maintaining social distance, washing your hands regularly with soap or sanitizer, while coughing or sneezing, cover your nose and mouth, download Kova app. So students, follow these guidelines, take care and stay safe. Coming to today's lecture, we will be discussing principles of management today. In the previous lecture, we discussed functions of management. अब ये जो functions होते हैं management के, who performs these functions? Managers. Managers perform these functions. वो ये function कैसे perform करते हैं? By following the principles of management. These principles of management were proposed by Henry Fayol. He was a French person. He proposed 14 principles of management, which I have listed here: division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest, remuneration, centralization of authority, scalar chain, order, equity, stabilization of tenure of personnel, initiative, spirit de corps or team spirit. So first principle of management is division of work. It means work should be divided among different persons best suited for different jobs according to their knowledge, experience and skill. क्या मतलब है कि सपोज हमारे पास कोई काम आता है, कोई काम असाइन हो गया है हमें कि ये काम करना है, तो व्हाट विल द मैनेजर डू? ही विल डिवाइड द वर्क इनटू सब टास्क, छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर लेगा एंड देन ही विल सी हु इज बेस्ट सुटेड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. तो जो पर्सन को जो काम आता है उसको वो काम देगा, जो पर्सन जिस काम के लिए बेस्ट सूटेबल है उसको वो काम देना है. कैसे जज करना है कि कौन बेस्ट सूटेबल है? बाय हिज नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल. सो बड़े काम को छोटे काम में डिवाइड कर लेना है, सारा काम एक पर्सन को नहीं दे देना है. Second is authority and responsibility. Now, authority and responsibility are closely related to each other. Authority was defined by Fayol as the right to give orders and power to exact obedience. Authority means the person who will take decisions. Authority is power of taking decisions. And responsibility क्या होती है? Responsibility involves being accountable for a job. Means suppose तुम कोई काम करते हो तो then you are responsible for that work. मतलब अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो किसकी जवाबदेही होगी? उस पर्सन की जिसने वो काम किया है. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू ऑल ड्यूटीज और एक्टिविटीज विच मस्ट बी डन टू कैरी आउट अ जॉब. अथॉरिटी इज एन इंडिविजुअल्स राइट टू मेक डिसीजंस एंड टेक एनी एक्शन नीडेड टू कंप्लीट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो क्या मतलब है कि एक पर्सन अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए कोई भी डिसीजन ले सकता है तो हम क्या कहते हैं? उसके पास ये डिसीजन लेने की अथॉरिटी है. So authority and responsibility are closely related to each other. Next is discipline. Discipline is must for an organization. अगर organization में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, strikes, lockouts होते रहेंगे तो organization will not be successful. So discipline means respect and obedience to rules, regulations, policies, procedures by all members of organization. So a manager has to see that all the rules and regulations and policies are followed by all the members of organization और किसी भी तरह के कोई लड़ाई झगड़े में ना पड़े. कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा करता है तो जो रूल्स बने हुए हैं, जो पॉलिसीज बनी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उनको उसकी पनिशमेंट या उनका डिसीजन हो. नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड. इट स्टेट्स दैट एन इंडिविजुअल शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड रिपोर्ट डायरेक्टली टू ओनली वन सुपीरियर. क्या मतलब है कि हर पर्सन का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए. ये नहीं कि एक पर्सन दो पर्सन्स के पास जाके रिपोर्ट कर रहा है, बिकॉज अगर वो पर्सन दो लोगों के पास रिपोर्ट करेगा तो दे कैन गिव हिम कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर्स. तो मतलब एक पर्सन कह देगा ये काम करना है, दूसरा पर्सन कह देगा नहीं करना है, तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. सो ईच पर्सन शुड हैव अ सिंगल बॉस ओनली. So unity of command avoids confusion, mistakes and delay in getting the work done. Next is unity of direction. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब है
कि एक टाइप की एक्टिविटीज़ का एक ही पर्सन हेड होना चाहिए. जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं दोज शुड बी हेडेड बाय सिंगल पर्सन. अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं दोज शुड बी हेडेड बाय सिंगल पर्सन, अनदर पर्सन. So unity of direction implies that there should be one plan and one head for each group of activities having the same objective. Moreover, the entire organization should be moving towards a common objective in common direction. पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़नी चाहिए. ये नहीं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा है. सो ऑल द डिपार्टमेंट्स मीन्स एंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव common objective. Next is subordination of individual interests. इसका क्या मतलब है? Subordination means नीचे रखना. Individual interests को नीचे रखना है, general interest को ऊपर लेके आना है. Means the interest of one person should not take priority over the interests of organization as a whole. अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ में सिंगल पर्सन का फ़ायदा हो रहा है तो वो काम हमने कैरी आउट नहीं करना है इन केस ऑर्गेनाइजेशन को उससे नुकसान है. तो ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा पहले सोचना है, किसी इंडिविजुअल का फ़ायदा बाद में सोचना है. दिस इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिटी एंड टू अवॉइड फ्रिक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़. रेम्यूनरेशन मीन्स द प्राइस पेड टू एम्प्लॉयज़ फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय दैम फॉर द एंटरप्राइज. मतलब जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको सैलरी क्या मिल रही है. अगर कोई ओवर टाइम कर रहा है तो उसको ओवर टाइम भी मिलना चाहिए. तो रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर एंड प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर. मतलब एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड होने चाहिए बाय व्हाट ही इज़ गेटिंग और एम्प्लॉयर भी सेटिस्फाइड होना चाहिए बाय व्हाट ही इज़ गिविंग. नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन. Centralization of authority means the authority is in the hands of one central point in the organization. Means all the decisions are being taken by only one person. चाहे वो decision marketing से related है, चाहे वो decision finance से related है, चाहे वो decision purchase से related है, all the decisions are being taken by a single person. So the degree of centralization is decided by keeping in view the nature, size and complexity of enterprise. Naturally, if the organization is small, जिसमें कम एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो सिंगल पर्सन अगर डिसीजन ले रहा है तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. बट इफ एंटरप्राइज इज़ वेरी बिग तो अगर सिंगल पर्सन के पास सारे डिसीजंस हैं तो इट कैन लीड टू chaos. सो इट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटरप्राइज की हु हैज़ टू टेक डिसीजंस. नेक्स्ट इज स्केलर चेन. स्केलर चेन का क्या मतलब है कि ऊपर से लेके सुपीरियर से लेके नीचे तक सबके पास जो भी अथॉरिटी है दैट इज इन अ स्ट्रेट लाइन. सो स्केलर चेन इज इट इज़ अ चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक. देयर शुड बी अनब्रोकन चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कमांड थ्रू ऑल लेवल्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक. The president is considered to be at highest rank, possesses the most authority. The first line supervisor, who is at the lowest rank, should have the least authority. Lower level managers should report to upper level manager and give them report of their work. This existence of scalar chain and adherence to it is very very necessary if organization is to be successful. So authority जो है वो ऊपर वालों के पास और नीचे वालों के पास एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो करनी चाहिए. ऊपर वालों के पास सबसे ज़्यादा, देन उससे कम एंड धीरे धीरे सबसे नीचे आते आते सबसे कम हो जानी चाहिए. नेक्स्ट इज ऑर्डर. ऑर्डर मीन्स दिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. दो चीज़ें, थिंग्स एंड पीपल. थिंग्स में क्या क्या आ जाएगा? मशीनरी भी आ जाएगी, मटीरियल भी आ जाएगा. सो ये प्रिंसिपल कहता क्या है कि दिस मीन्स एवरी मटीरियल शुड बी इन इट्स प्लेस एंड देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरी मटीरियल. Likewise, in the case of people, a right man should be in the right job. क्या मतलब है कि जो भी मटेरियल है, जैसे कोई मशीनरी है उसकी फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए. रॉ मटेरियल है उसका फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए कि ये यहाँ पे पड़ा रहेगा. रॉ मटेरियल जब भी आएगा उसको यहाँ पर हमने रखना है. सो टूल्स जो हैं वो यहाँ पर रहेंगे. सब चीज़ों की एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए और वो वहाँ पर अवेलेबल भी होने चाहिए. इसी तरीके से लोगों के लिए भी दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर थिंग्स एंड पीपल. सो थिंग्स में हमने क्या बात की है कि मटेरियल और रॉ मटेरियल, मशीनरी, टूल्स,
ये सब अपनी जगह पर ही होने चाहिए, इनकी एक प्रॉपर फिक्स प्लेस भी होनी चाहिए और ये अपनी जगह पर भी होने चाहिए। इसी तरीके से जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी कोई काम मिल रहा है उनको, दे शुड बी दिस प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड दैट राइट मैन शुड बी इन द राइट जॉब। जिसको जो काम आता है उसको वही काम देना है। इक्विटी, manager should be fair, unbiased and meaningful in his dealing with subordinates. That is, there should be no favoritism. All employees should be treated as equally as possible. इसका क्या मतलब है कि मैनेजर को कोई भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ उसके फेवरेट हैं, बल्कि सबको इक्वल मान के चलना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल इज किसको कहा जा रहा है? एम्प्लॉयज़ को। तो स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे पास काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने 2 महीने काम किया देन वी चेंज द एम्प्लॉयज़। 2 महीने हर 2 मंथ्स के बाद हम एम्प्लॉयज़ अगर चेंज करते रहेंगे तो वी विल हैव टू ट्रेन एवरी न्यू एम्प्लॉय। तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है? उससे हमारे जो रिजेक्शंस हैं, प्रोडक्ट की रिजेक्शंस हैं, वो बहुत बढ़ जाती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़। So retaining productive employees should always be a high priority of management, बिकॉज अगर तुम बार बार नए लोग रखते हो तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती हैं और प्रोडक्ट की रिजेक्शन रेट भी इंक्रीज हो जाते हैं विद न्यू वर्कर्स, बिकॉज यू हैव टू ट्रेन देम अगेन एंड अगेन। उनको बार बार बताना पड़ता है कि ये काम कैसे करना है। एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड ओनली विद स्टेबल वर्कफोर्स। तो एफिशिएंसी कैसे मिलती है? अगर सेम एम्प्लॉयज़ सेम काम कर रहे हैं, जो ट्रेंड पर्सन है वही काम कर रहे हैं। सो अननेसेसरी लेबर टर्नओवर शुड बी अवॉइडेड। लेबर टर्नओवर क्या होता है? जो लोग बार बार छोड़ के जा रहे हैं। सो अननेसेसरीली लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बार बार छोड़ के नहीं जाने चाहिए। दे शुड फील सेटिस्फाइड इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दे शुड हैव स्टेबल टेन्योर। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है? इट इज़ न्यू और एडिशनल वर्क एक्टिविटी अंडरटेकन थ्रू सेल्फ डायरेक्शन। मीन्स कोई नया काम करना है अपने आप को मोटिवेट करके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम अपने आप को अगर एक एम्प्लॉय अपने आप को मोटिवेट करके नया काम अंडरटेक करता है तो इट ब्रिंग्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन हिम, और सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्या होता है? एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सो मैनेजमेंट शुड टेक स्टेप्स टू इनकरेज वर्कर इनिशिएटिव एज इट ब्रिंग्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन अ वर्कर विच इम्प्रूव्स हिज एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी बढ़ने से नेचुरली उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली प्रॉफिट किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशन को। सो लास्ट प्रिंसिपल इज स्पिरिट डी कॉर्प्स। दिस इज रिटन इन फ्रेंच ओनली बिकॉज दिस वॉज प्रपोज्ड बाय फ्रेंच पर्सन हेनरी फेयोल। दिस मीन्स टीम स्पिरिट। दिस प्रिंसिपल emphasizes the need of teamwork among the employees and shows the importance of communication in obtaining such teamwork. ये क्या कहता है कि सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। दे शुड ऑल द टीम मेंबर्स शुड कोऑपरेट विद ईच अदर, कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, हेल्प ईच अदर एंड कीप कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, राइट? मैनेजमेंट शुड ऑल्सो encourage harmony and general good feelings among employees. So all these principles are must for successful management. So concluding these principles, these 14 principles of management help managers to learn how to organize and interact with their employees in a productive way. These can be used to manage organizations and are useful tools for forecasting, planning, process management, organization management, decision making, coordination and control. So जो managers हैं, if they keep following these principles, they will definitely take the organization towards a successful path. I hope you have understood all the principles well. In case of any problem, you can contact me. Thank you.